Dear students, all of you are welcome to the short video of Introduction to Morphology, and this is the third unit from your book. It is one of the mandatory units because it deals with the study of the words, study of the word formation, and how these words they have been structured to form complete words, and how these words they are later formed together to form different grammatical categories. The content has been produced by Dr. Saira Mansoor and reviewed by Dr. Rashna Imran. Let's quickly review the content outline. So you can see that this content, it contains the definition of morphology and word, and later we will focus on the internal structure of the words. After inflections versus word formation, we'll talk about lexical and grammatical words, affixation, types of word formation, linguistic paradigms, morphosyntax, and morphological tree. Let's move on. We will discuss all these points one by one. Students, you know what is word? You know that while words are generally accepted as being the smallest unit of syntax in most languages, if not many, not all, many words can be related to other words by rules that collectively describe the grammar for that language. And rules understood by a speaker reflect specific patterns or regularities in the way words are formed from smaller units in the language they are using and how those smaller units interact in speech. So the focus of this unit is introducing the branch of linguistics that studies the patterns of words formation within and across different languages and attempts to formulate rules. I'm going to highlight the whole portion. So the focus of this unit is introducing the branch of linguistics that studies patterns of word formation within and across languages and attempts to formulate rules that model the knowledge of the speakers of those languages. For this unit, the following are the learning objectives. So one thing which is very important, that you must know why you are studying morphology. For this, you must know about the major concepts in the study of morphology. You need to describe different types of morphemes and how they are formed, then how they demonstrate the principles of language that govern the construction of morphemes, and how morphology interacts with other components of language. Here you need to distinguish the meaningful subpart of words, explain the major morphological phenomena found in the world's language, and then analyze morphological patterns in English language, represent morphosyntactic structure diagrammatically, and comprehend the relationship between such structure and meaning. So many concepts, but apparently seeming different terms should not let confuse you. आपको इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. मॉर्फोलॉजी के हवाले से हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और सिंपल डेफिनेशन अगर जैसे कि वर्ड मॉर्फोलॉजी जो है वो टू मॉर्फीम से बना मॉर्फ एंड ओलॉजी. मॉर्फ मीन होता है शेप और ओलॉजी का मतलब है स्टडी. ठीक, और बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. It means that it's the study of the form, it's study of the structure. The word was introduced in 1859 for the first time by German linguist August Schenker as subfield of linguistics. He coined the word for the study of the form of the word. So students, it is important to understand who was that first person, who was the first linguist who introduced morphology. So the word has been first introduced by August Schenker as subfield of linguistics. So, such as Rubik cube words also consist of internal arrangements. अभी Rubik cube का जो imaging internal structure of the words है, ये जिसका words होते हैं वो इसी तरीके से different combinations होते हैं, different
लाइक स्मॉल और लार्ज यूनिट्स के, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि प्रीफिक्सेस होते हैं, सफिक्सेस होते हैं। देन आप कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्ट्रेस पैटर्न, इंटोनेशन पैटर्न, टाइपोलॉजी इसकी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी टाइपोलॉजी है स्टडीज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द लैंग्वेज इन द बेस ऑफ देयर वर्ड्स, यूसेज एंड लेक्सिकोलॉजी, ठीक है। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाउ मच सिंपल इज द आइडिया, और कितना ज्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना और पढ़ना। Now let's recall the idea. What is morphology? The study of the structure of words and how words are formed out of smaller meaningful pieces and other words. The smallest meaningful part of word is called a morpheme. A morpheme is a minimal unit in which there is an arbitrary union of sound and a meaning. So students, simply morphology, which is combination of two Greek words, right? And in combination, it means that morphology deals with the study of words, study of the structure of the words, and how different words are formed out of smaller meaningful pieces and other words. And students जो smallest meaningful pieces हैं उनको basically उनके लिए technical word है उसे कहते हैं morpheme. और इसकी जो definition है वो ये है कि the smallest meaningful part of the word is called a morpheme. This morpheme is a minimal unit in which there is an arbitrary union of sound and a meaning. और ये जो morpheme है basically आप कह सकते हैं कि arbitrary का मतलब ये है कोई logical नहीं है, ये कोई sequence नहीं, बल्कि ऐसा होता है कि आप कह सकते हैं कि lexical meaning है और grammatical function है इसका। तो basically that deals with what you say. जैसे आप कहते हैं कि हाँ ये आर्बिट्रेरी यूनियन है, यानी कि कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती कि अच्छा इसकी साउंड ऐसी क्यों है, इसका वर्ड ऐसा क्यों। रीजन बस ये है कि वो कुछ वर्ड्स हैं जो मीनिंग उनके देते हैं और ये उनका मेथड है उनको बोलने का, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है रूल, ये एक आर्बिट्रेरी यूनियन है। तो इस तरह के हार्ड मतलब ऐसे कनेक्शन जिसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर रेगुलर रूल ना हो और जो कि एक रैंडमली कनेक्टेड हो, अपने आर्बिट्रेरी कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा लेक्सिकल आइटम आपके लिए नया होगा। लेक्सिकल का मीनिंग का मतलब होता है यानी कि मीनिंग ऑफ द वर्ड, लेक्सिक का मतलब होता है वर्ड। ग्रामेटिकल फंक्शन है मतलब ये है कि इसके एंड पे अगर आप आईएनजी लगा दें, ईडी लगा दें, तो वो क्या बन जाता है, वो उसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, ठीक है। लेट्स गो अहेड। Sure, this idea must be very much clear to everyone. Basically what कैटेगरी को अगर आप देखें तो इसमें दो तरह की कैटेगरीज है, एक लेक्सिकल है और एक फंक्शनल है। मतलब ये है कि लेक्सिकल जो होती है वो कंटेंट की कैटेगरी है और जो फंक्शनल होती है वो बेसिकली आपका आपका फंक्शनल वर्ड्स है। मतलब ये है कि जो मीनिंग से हैविली लोडेड होते हैं उनको आप लेक्सिकल कैटेगरी कहते हैं, कंटेंट कैटेगरी कहते हैं। जो फंक्शनल कैटेगरी होती है वो ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है। सपोज कि आपने किसी में एस या अपोस्ट्रोफी एस को ऐड करना है तो दिस इज हाउ यू से कि ये इसकी फंक्शनल कैटेगरी है, ठीक। तो लेक्सिकल कैटेगरी में ओपन लेक्सिकल कैटेगरीज है और क्लोज लेक्सिकल कैटेगरीज है और डिफरेंट फॉर्म्स है। इन्फ्लेक्शन यहाँ पर इन्हें कहा जाता है। इन्फ्लेक्शन जो है ना बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। उसका कहा जाता है कि इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि आपने जो है सपोज किसी कहीं पर आपने एस या ई एस को ऐड किया तो उससे आपने जो है इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दिया। यूज ऑफ ईडी से आपने जो है उसकी सेंस चेंज कर दी, आपने उसको पास्ट टेंस बना दिया, ठीक है। तो इन अ सिमिलर नोट आपने इसको एक पावर दे दी कि वो वर्ड्स जो एक टाइम पे जो है वो सपोज एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर रहे होते हैं सब टाइम जो है। आप कह सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ग्रामेटिकल कैटेगरीज जो है ना वो यहाँ पर एसोसिएटेड है के साथ अटैच। मॉर्फीम के टाइप्स के वजह मैंने आपको बता दिए, दो तरह के मॉर्फीम्स हैं, फ्री मॉर्फीम्स और बाउंड मॉर्फीम्स हैं। फ्री वो होते हैं जो कि इटसेल्फ परफॉर्म द फंक्शन एज अ वर्ड इन ए लैंग्वेज। और उसकी एग्जांपल्स यहाँ दी है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि नाउन, आप नाउन के अलावा जो है आप डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप वर्ब हैं। तो ये सब के सब जो है ये आप कहते हैं कि कंटेंट वर्ड्स हैं। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स जो होते हैं ये सब के सब जो होते हैं कंटेंट वर्ड्स होते हैं। और जो फंक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो कि preposition conjunctions,
प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क ये है कि ये फ्री क्यों है और वो जो है बाउंड क्यों है। देखिए, अगर आपने ही शी इट यूज करना है तो उसके साथ आपको प्रीवियस को रेफरेंस भी चाहिए। अगर आपने एल वाई यूज करना है तो उसके साथ में वर्ड भी चाहिए। अगर आपने कोई दिस कहीं कोई आपने ऐसे यूज करनी है जिसे कहते हैं कि कंजक्शन यूज करनी है, एंड का इस्तेमाल करना है और का करना है, उसके लिए भी आपको दूसरे वर्ड चाहिए। इसलिए ये बहुत ज्यादा बाउंड होते हैं। फ्री मॉर्फीम वो होते हैं विच कैन स्टैंड अलोन, जैसे कि पावरफुल वर्ड्स होते हैं जो कि यूजुअली डिक्शनरी में होते हैं, जो कि इंडिविजुअली दे कैन हैव देयर ओन मीनिंग, तो इसे आप कहते हैं फ्री मॉर्फीम्स। और इसी तरह एक बाउंड मॉर्फीम्स है। बाउंड मॉर्फीम बेसिकली डील्स विद द थिंग व्हिच कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये वो वर्ड्स है जो स्टैंड दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, राइट। और इसके सारे सारे ग्रामेटिकल फंक्शंस जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, तो इनको बाउंड मॉर्फीम कहा जाता है। ये देखिए बहुत जबरदस्त चार्ट है जो आपको समझना और इसको पेपर में बनाना भी आसान हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स है, दो है, फ्री और बाउंड है। फ्री को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेक्सिकल और फंक्शनल में, और बाउंड को दो पार्ट्स में किया गया, डेरिवेशनल और इनफ्लेक्शनल, ठीक है। दोस्तों दिस इज हाउ यू से कि ये दो पार्ट्स हैं, इनको आप डिवाइड कर दिया। जो फ्री है उसकी एक दो तरह की कैटेगरीज आ गई, एक तो फंक्शनल कैटेगरी है और एक लेक्सिकल है। और जो बाउंड है वो भी ऐसे वर्ड्स है विच कैन नॉट स्टैंड अलोन, लेकिन ये है कि वो डेरिवेशनल या इनफ्लेक्शनल हो सकते हैं। जो डेरिवेशनल का मतलब है कि आप डिफरेंट वर्ड्स जो बनाते हैं, जैसे री लगा दिया, कहीं नेस लगा दिया, कहीं ली लगा दिया, तो ये डिराइव कर रहे हैं आप, यानी नए नए वर्ड्स बना रहे हैं, तो ये भी बाउंड ही होते हैं। और इनफ्लेक्शन वो होते हैं जो कि ग्रामर के हवाले से होते हैं, और उसमें आप एडिशन करते हैं, एस हो गया, अपॉस्ट्रोफी एस हो गया, ईडी हो गया, तो ये बेसिकली आपके इनफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। मजीद कि ये ओपन क्लास और क्लोज क्लास क्या होता है, ये बात अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश मॉर्फीम्स है। फ्री बाउंड को तो समझ आ गई। फ्री तो वो होते हैं ना जो कि विच कैन स्टैंड अलोन, ठीक है। और एक होते हैं बाउंड होते हैं विच कैन नॉट स्टैंड अलोन। उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की कैटेगरीज है बाउंड में भी। एक तो उसमें फिक्स है और एक उसमें आपका मेन वर्ड है, ठीक है, रूट है, जिसे आप डेरिवेशनल वर्ड्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्री के हवाले से पहले बात कर ले मॉर्फीम्स में, तो आप देखिए ओपन क्लास और क्लोज क्लास। ओपन क्लास में शामिल है नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। क्लोज क्लास में जो बाकी ग्रामर के आइटम्स है, जैसे प्रोनाउंस है, कंजक्शन है, प्रपोजिशंस है, ऑक्सिलरीज है, ये सब कुछ इसमें शामिल है। इफ आई टॉक अबाउट बाउंड, बाउंड में देखिए अफेक्स और रूट है। अफिक्सेशन में मैंने आपको बताया कि फिक्सेशन जो कॉन्सेप्ट है बहुत कंप्लीट है। स्टूडेंट पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है फिक्सेशन किसे कहते हैं। बेसिकली प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स जब यूज करते हैं तो इसे अफिक्स कहते हैं। और उर्दू में ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे सांप के लाखों का कॉन्सेप्ट कहा जाता था, और ये बड़े पॉपुलर है। ये बाउंड मॉर्फीम में जो अफिक्सेशन की जो एक आप हैंगिंग डिवीजन देख रहे हैं, यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि अफिक्सेशन किसे कहते हैं या प्रीफिक्स किसे कहते हैं। और सफिक्स, सफिक्स बाद में आता है, प्रीफिक्स पहले आता है। जो इनफिक्स है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में इतने ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू, एक्सेप्ट वेरी वेरी फ्यू, यानी कि यूजुअली जैसे ब्रदर इन लॉ में जो इन है ना वो बेसिकली आपका इनफिक्स है। क्या है? इनफिक्स है। प्रीफिक्स में देखें, प्री, उन, अन, डिस, ठीक है, इसी तरह ली है, इस्ट और मेंट है, ठीक है। और इस तरह रूट की अगर बात करें तो उसमें देखिए फॉर्म है, बीन है, सेंस है, तो ये रूट मेन वर्ड है जिसकी जो कि मेन सेंस जो होता है वो उसको कन्वे करता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी के प्रोसेस के हवाले से बात की जाए तो इसमें दो तरह की प्रोसेसेस हैं। एक जिसे आप कहते हैं कि कॉन्केटेटिव और एक नॉन कैंटेटिव, ठीक है। जो कॉन्केटेटिव है ना बेसिकली उसमें आप जो है मॉर्फीम्स को इकट्ठा कर लेते हैं। और जो नॉन नॉन के टेंटेटिव है ना उसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी रीडुप्लीकेशन और ट्रांसलेशन है, सब और सप्लीशन वगैरह होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली रीडुप्लीकेशन है या सप्लीशन इसको कहते हैं। ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट है ना जो कि एक स्ट्रक्चर का होता है जो कि यूजुअली स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, फिक्सेशन और कंपाउंडिंग का, ठीक है। बाकी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इनिशियली ऑल्टरनेशंस वगैरह जो होती रहती है वो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, फिर ग्रेजुअली दे बिकम स्टैंडर्डाइज। तो ये प्रोसेस है बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इसे कहते हैं। सो एक जो मॉर्फोलॉजी में बहुत बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ना वो है फिक्सेशन। प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स का मैंने आपको बता दिया, जो कि वर्ड से पहले आता है, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में आता है।
सफिक्स जो होता है दैट कम्स आफ्टर द वर्ड। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि वर्ड है प्री मेच्योर। अब इसमें जो प्री है ना वर्ड वो है प्रीफिक्स। अच्छा, अब पावरफुल वर्ड अगर यूज करें तो जो फुल वर्ड है वो बेसिकली क्या है? बस स्टूडेंट सफिक्स के बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं, आई वांट यू कि इसको आप क्विकली गो थ्रू करें, स्क्रीन को पॉज करके यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और इसको रीड करें कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कौन कौन से हैं। ठीक है, जो देखिए अन, नॉन, इन, दिस, प्री, इस सब के सब जो है दे शो समथिंग वेरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट? दोनों इसमें एस्पेक्ट डिफरेंट है, यानी अन और जो इसी तरह नॉन है ये, और इसके अलावा इन जो है, ठीक है ना। और इसके अलावा दिस है, साथ के सब नेगेटिव और पॉजिटिव में देखें, रीगेन फॉर एग्जांपल दिस पॉजिटिव, ठीक हो गया। अच्छा, अब साइज है, उसके बाद सेमी, मिनी, माइक्रो वर्ड यूज किए जाते हैं प्रीफिक्सेस में। इसका लोकेशन में बात की जाती है इंटर, सुपर, ट्रांस, एक्स, जो एक्स्ट्रा। टाइम एंड ऑर्डर में देखें तो प्री जो एंटी है, पोस्टफुल। सफिक्स के हवाले से स्टूडेंट देखें, कुछ सेंटेंसेस के एंड पे से मेंट आता है, और सम टाइम के एंड पे जो होता है एंस आ जाता है, टर आता है, ओ आर, जैसे ई आर के साथ भी आते हैं वर्ड्स, कुछ ऐसे होते हैं। किसी के एंड पे ओलॉजी आ रहा होता है, किसी के एंड पे इस्ट आता है, किसी के एंड पे एबल आ रहा है, किसी के एंड पे लेस आ रहा है, किसी के एंड पे आई एस एच आ रहा है। इससे इसका जो एक मीनिंग होता है, सेंस होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अच्छा, कंपाउंडिंग के वजह से बता दूं, ये बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, जैसे ग्रीन हाउस हो गया, फुटबॉल हो गया, डाइनिंग टेबल हो गए, सब वर्ड्स है, दो दो वर्ड्स हैं, टेक्स्ट बुक है, तमाम वर्ड्स जो ऐसे हैं कि जो दो जो है कंबाइन टुगेदर दे गिव मीनिंग। मेकअप हो गया, मदर इन लॉ हो गई। कंपाउंडिंग को देखिए कितना खूबसूरत, आ डार्क रूम, आ डार्क रूम। अब देखें कि आ डार्क रूम, इस दोनों में स्ट्रेसिंग को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको एग्जाम्पल कैसे हम समझेंगे। डार्क रूम का मतलब है जैसे कि जो कि फोटोग्राफर्स अक्सर यूज करते हैं, और आ डार्क रूम, तो ये देखिए इसमें रूम पे ज्यादा स्ट्रेस है। इसी तरह ग्रीन हाउस के जो है इधर वाली पिक्चर जो आपकी स्पेशली जो राइट साइड की पिक्चर है, दैट इज इंडिकेटिंग अ परफेक्ट ग्रीन हाउस, जो कि नॉर्मली किसी का भी घर हो सकता है। और इस हाउस के एंड पे जो है ना वो स्ट्रेस मार्कर आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन जो आपके बिल्कुल जो लेफ्ट साइड पर है, आपसे देखें कि ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस का मतलब है कि एक आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि आपने आर्टिफिशियली ग्रो करके कुछ प्लांट्स को ग्रीन हाउस इम्पैक्ट देने की कोशिश की। तो रीडुप्लीकेशन का बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, जो कि ज्यादातर मशहूर है, बहुत ज्यादा। इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय डबलिंग ईदर एन आई इन एंटायर फ्री मॉर्फीम्स और पार्ट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल बाय बाय, नाइट नाइट, सिट सिट, सुपर डुपर। अरे इसमें जो अब नजर आ रहा है वर्ड सुपर है, डुपर कोई नहीं है वर्ड, लेकिन आप उसमें यूज करते हैं, और अक्सर दो दो वर्ड बार कह रहे होते हैं। सो डू यू लाइक मी, आई हैव टू गो नाउ, नाउ आई हैव द फोन कॉल। सो दिस इज हाउ आप इसको टोटल डुप्लीकेशन जो है रीडुप्लीकेशन कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि आप नया वर्ड तो बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ डबल कर रहे हैं, इधर एन एंटायर फ्री मॉर्फीम, दोबारा ही नहीं, एक बात को दोबारा से कह देते हैं और उसको आप यूज रूटीन में बोलते हैं। तो अल्टरनेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करें कि इसे मॉर्फीम्स जो होते हैं उनके इंटरनल मॉडिफिकेशन होते हैं। अल्टरनेशंस जो है यूजुअली देखिए कि आप इंटरनल मॉडिफिकेशंस कैसे मॉर्फीम्स पे करें। इसमें वॉवल्स की मॉडिफिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है यहाँ पर बिगिन और बिगेन और बिगन। ये इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं इंटरनल मॉडिफिकेशन का नतीजा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट है, ये भी एक इंटरनल ऑल्टरनेशन जो है उसका एक रिजल्ट है। ऑल्टरनेशंस का कंटिन्यूशन है। कौन लास्ट वाले जो हमने स्लाइड पढ़ा उसमें हमने वॉल्स को पढ़ा, अब इसमें हम कॉन्सोनेंट का मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं।
स्टूडेंट कॉन्स्टेंट जो आपका कॉन्सोनेंट मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे एफ जो है, बिलीव है, इसमें एडवाइस है, आप अक्सर कहते हैं डिफेंस है, डिफेंड है, बेंड है। अच्छा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टाइप जो है ना, जो आप वर्ड फॉर्मेशन की कह सकते हैं या एक मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें ये होता है रूट मॉर्फीम इज प्लेस्ड बाय अ फोनोलॉजिकली अनरिलेटेड फॉर्म इन ऑर्डर टू इंडिकेट अ ग्रामेटिकल कॉन्ट्रास्ट। अब ग्रामेटिकल कॉन्ट्रास्ट को देखें, फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, वर्स्ट, कंपैरेटिव सुपरलेटिव्स जो है, इसका प्रेजेंट वर्ब है इज वाज गो, यानी बी की डिफरेंट फॉर्म है इज वाज गो वेन। इस तरह वर्स्ट देखें कि सिंगुलर, अगर आपने सप्लीशन की एग्जांपल्स जो है ये काफी सिंपल है, प्रेजेंट वर्ब के हवाले से और पास्ट टेंस के हवाले से बताया कि इज है और वॉस है, गो है, वेंट है। एडजेक्टिव्स और कंपैरेटिव्स के हवाले से बताया, गुड है। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है, ठीक है। दो बेसिक मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स है, एनालिटिकल लैंग्वेजेस और सिंथेसिस लैंग्वेजेस। एनालिटिकल लैंग्वेजेस होती है वर्ड्स दैट मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ फ्री मॉर्फीम्स, each word consists of single morpheme used by itself with the meanings and functions. They are also called isolating languages, do not use affixes to compose words. Right, let's see. अच्छा, समटाइम आप जो affixes को इतना एंटरटेन नहीं करते और आप कहते हैं कि affixes का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आइसोलेटिंग के डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं उनको यूज करना है, ठीक है। और वो सारे के सारे फ्री फ्री वर्ड्स होंगे, तो आप उसे कहेंगे कि हाँ भाई ये एनालिटिकल जो है कॉन्सेप्ट। और सिंथेटिक लैंग्वेजेस होती हैं, इससे बाउंड मॉर्फीम्स आर अटैच्ड टू अदर मॉर्फीम्स, अ वर्ड मे बी मेड अप ऑफ सेवरल मीनिंगफुल एलिमेंट्स। और उसके बाद स्टेम refers to that part of the word in affixes are added. For example, rerun जो है, देखिए अब ये वर्ड्स है, स्टेम जो है वो रन है, ठीक है। रन, रीरन जो है कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे का स्टेम जो है इसकी रन है, ठीक है। रन या फिर runs, फॉर एग्जाम्पल। थ्री टाइप्स ऑफ सिंथेटिक लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, ये तीनों डिफरेंट टाइप्स स्टूडेंट्स आपको पता चाहिए कि एग्लूटिनेटिंग, फ्यूजनल और पॉलीसिंथेटिक लैंग्वेजेस है, ये तीन डिफरेंट टाइप्स। स्टूडेंट, आई वांट यू कि अगर आप इसको क्विकली गो थ्रू करें तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डिराइव्ड वर्ड्स को देखें। जितने भी वर्ड्स आप डिराइव, वर्ड डेरिवेशन का जो एक प्रोसीजर होता है, और ये आप सबको पता होना चाहिए कि जितने जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं वो एक उनका एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद जो है इधर उनके साथ प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, या फिर ये कि उनको इंटरनली एक रूट से डिफरेंट वर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि इस डेरिवेशन के प्रोसेस में आप लेक्सिस को कैसे यूज कर रहे हैं। यह एग्जाम्पल है रीयूजेबल एंड अनयूजेबल। बेसिकली उसका ट्री डायग्राम आपके सामने मौजूद है। ये वो डायग्राम है जो कि यूजुअली यूनिट के एंड पे शो की जाएगी, लेकिन ये हमने आपको पहले इसका रिफ्लेक्शन दिया है कि देखिए एक वर्ड है रीयूजेबल, ठीक है। तो यूज जो है इसमें आपका जो वर्ब है बेसिकली, ठीक है। रीयूजेबल जो है वो एडजेक्टिव है। अब आप एक ही वर्ड जो वर्ब है उसके किस तरह की फॉर्मेशन की, द डिफरेंस इज रीयूज इज द वर्ब बट अनयूज इज नॉट अ वर्ब। रीयूजेबल, ठीक है, इज अ वर्ड, लेकिन ये वर्ड जो है बेसिकली अनयूज जो है वर्ड नहीं। अब यहाँ पर कुछ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिराइव्ड वर्ड्स हैं जो विच आर इम्पोर्टेंट, इसको आप देखिए यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से अनलॉकेबल, लॉकेबल, ठीक है। उसको फर्दर आप किस तरीके से इस तरह एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब हायरार्की होता है एक तरतीब, एक सीक्वेंस, ठीक। कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द डिराइव्ड वर्ड्स क्या है, मॉर्फीम्स दैट कैन अटैच टू मोर देन वन लेक्सिकल कैटेगरी।
ठीक है, जो वो एक ही कैटेगरी के साथ नहीं बल्कि बहुत सारी कैटेगरीज के साथ अटैच हो सके, उन्हें आप कहते हैं कि ये वो वर्ड्स हैं जो कि आप जिससे आप बहुत सारे वर्ड्स पॉइंट कर सकते हैं। यूजुअली प्रीफिक्सेस होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि बहुत सारे वर्ड्स के साथ वो अटैच हो और फिर मीनिंग कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस देखिए, एनालाइजिंग वर्ड्स इनटू देयर लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स। टीचर्स और उसका फंक्शन है, ये टीचर्स की जब बात करेंगे नाउन है। ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है? नाउन। और इस पे मॉफ, मॉफ का मतलब मीनिंग वाइज डिवाइड करें, टी, चर और एस, तो ये थ्री मॉफ्स हैं। इसी तरह अगर स्मॉलर की बात करें तो इसमें टू मॉफ्स हैं, यूज ऑफ स्मॉल और ई आर। वर्किंग में भी आपके टू मॉफ्स हैं, और इसमें क्या है? वर्क और आई एन जी किया, तो ये दो मॉफ्स बन गए। और वर्किंग में जो है ये नाउन भी बन जाता है, तो ये इसका मतलब है इसमें टू मॉफ्स हैं। उसमें वन इज लाइक डीलिंग विद वर्क एंड अदर वन आई एन जी। और ये थ्री मॉफ्स जो है, मॉर्फीम्स जो है, वर्क, जेरेंट। जब आपने नीचे वाला देखे, दोनों वर्किंग में डिफरेंस है। एक जो वर्किंग है वो वर्ब है और एक नाउन। इंपॉर्टेंस क्या स्टडी करने की? एक तो ये कि आपको बहुत सारे मॉर्फीम्स की स्टडी का समझ आ जाती है, वोकैबलरी का पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वोकैबलरी है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। इसके साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स को आप अनसीन, देखा नहीं हुआ, लेकिन आपको उसकी समझ आ जाएगा। स्पेलिंग्स के हवाले से देखा जाए तो मॉर्फीम्स आर यूनिट्स दैट कैन बी प्रिडिक्टिवली स्पेल्ड। अब समरी को देखा जाए, इसका ब्रीफ कंटेंट है, मॉर्फीम इज मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग, मीनिंगफुल यूनिट है। और पार्ट ऑफ स्पीच आर फ्री मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम कंसिस्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड क्लास मॉर्फीम्स। Open classes are noun, adjectives, and verbs. Closed classes are pronouns, prepositions, determination, conjunction. And bound morphemes are affix and root. And derivation is the process of creating words out of other words, and a new word performs one or more operations on it. स्टूडेंट, ये जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे जितने भी यूनिट्स जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनकी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि डेरिवेशन क्या है, बाउंड मॉर्फीम्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें आप नई नई ग्रामेटिकल कैटेगरीज और फॉर्म्स जो जनरेट कर रहे होते हैं, तो इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, वेल स्टूडेंट्स, सो ये इंटरेस्टिंग है। डिवाइड द वर्ड इनटू कंपोनेंट्स, मॉर्फीम्स एंड गिव द मीनिंग। ऑब्वियसली आप सिंगल स्लाइसेस जो होते हैं उनको आप जो है किस तरीके से आप डील करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। Let's take a quick recap of the morphology. I told you about how the words they have been formed out of Greek word, which means the study of the shape. Here is very important reference of Rubik's cube words, which shows कि basically एक word की internal arrangement कैसे होती है, right? Let's move on. I told you all about what morpheme stands for, which is taken up as the smallest meaningful units, right? And the study and the structure of the relationship of the words with other words in a similar language fall in the morphology. Let's go ahead. Morphemes can be also be divided. Morpheme के हवाले से ये है कि they can also be divided into categories, जो मैंने आपसे already discuss किए कि ये basically free और bound morphemes हैं। ठीक है, इनको इनको भी आप like रिकॉल करें, और हमने जो अभी अभी स्टडी किया आप उसको यू कैन मूव बैक, और आप जो फ्री और बाउंड मॉर्फीम का जो कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। कि बेसिकली जो फ्री मॉर्फीम्स होते हैं दे कैन स्टैंड अलोन, और बाउंड मॉर्फीम्स जो होते हैं दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, राइट? यहाँ उसकी एग्जांपल्स दी गई है, एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, जो स्पेशली आप देखें कि जो फ्री मॉर्फीम की एग्जांपल ट्राई की दी है और बाउंड मॉर्फीम की जो एग्जांपल दी गई है वो दैट इज कि आप उसमें आईएनजी को आईएनजी करते हैं तो ये बाउंड मॉर्फीम। यू रिमेम्बर कि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि वर्ड की डेफिनेशन जो है वो बहुत जरूरी है उसको समझना। एंड यू नो दैट द वर्ड स्टैंड्स फॉर स्मॉल ऑटोनोमस यूनिट्स इन द लैंग्वेज, और ये बेसिकली वो ऑटोनोमस यूनिट्स होते हैं
जो sometime they can stand alone but sometimes they are not at all depending on other words and they have their own meaning. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि आप डिक्शनरी ओपन करते हैं वहाँ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो बेसिकली वर्ड की डेफिनेशन है। और आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। उसके अलावा बहुत सी ग्रामेटिकल कैटेगरीज की इन्फ्लेक्शंस होती हैं जो पे यूज की जाती है। तो लेक्सीम्स और वर्ड फॉर्मेशन का भी यहाँ टर्म यूज की गई है। और इस हवाले से बता दूं आपको कि जो वर्ड है, the term word by itself does not carry any specific meaning. Alternatively, two associated lexemes, any word and form are used in morphology. Lexemes are a set of inflected forms. Inflected का मतलब है कि grammatically changed forms जो होती हैं उन्हें lexemes कहते हैं। अगर वो उसमें ग्रामर नहीं होगी तो वो खाली लेक्सीम है, और अगर उसमें आप उसमें ऐड करेंगे तो वो बेसिकली क्या है आपसे कहते हैं, अगर ग्रामर इन्वॉल्व है तो लेक्सीम्स है, और अगर उसमें ग्रामर इन्वॉल्व नहीं है, इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, तो आप उसे वर्ड कहते हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली वर्ड फॉर्म्स का और लेक्सीम्स का। ठीक, हम लोग अगर थोड़ा सा आगे चले तो यू विल गेट हैव एन आइडिया। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि रूट का एक कॉन्सेप्ट है वर्ड्स में, राइट? ये सेपरेट रूट्स, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे वर्ड कॉम्बाइन है, कंबाइंड है। तो कंबाइन इसमें जो है ना रूट है, और ईडी जो है वो ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शन है। तो इस तरीके से आप जो है इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करें और उसमें से रूट वर्ड सेपरेट करें फ्रॉम द ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शन। तो मैंने अभी भी वर्ड बोला इन्फ्लेक्शन का, इन्फ्लेक्शन में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुकी है आपको। इन्फ्लेक्शन वो होता है जो कि आपकी ग्रामेटिकल कैटेगरीज में जो एक चेंज आता है बाय द एडिशन ऑफ न्यू ग्रामेटिकल वर्ड्स, उन्हें इन्फ्लेक्शन किया जाता कहा जाता है। ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है स्पेशली इन लिंग्विस्टिक्स। तो इन्फ्लेक्शन ग्रामेटिकल होती है, और वर्ड फॉर्मेशन होता है कि नए नए वर्ड्स आप बनाते हैं। जैसे आप कुछ ना कुछ मतलब फ्यू वर्ड से डिफरेंट वर्ड्स बनाएं तो उसे आप कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। लेकिन आप ग्रामर के साथ उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो इन्फ्लेक्शन होती है। वो बेसिकली वो प्रोडक्टिविटी में नहीं आता। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स की बात की जाए तो बेसिकली आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वर्ड्स का, वो बेसिकली अफिक्सेशन बेस्ड है। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि आपका एक वर्ड है उसमें एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स होता है, ठीक है? तो ये इसका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो जितने भी वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज हैं, लेक्सिकल और फंक्शनल है, ठीक है? और जो लेक्सिकल है बेसिकली दैट डील्स विद द वर्ड फॉर्म्स, और फंक्शनल जो होती है वो ग्रामेटिकल फॉर्म्स होती है, ठीक है? अफिक्सेशन का मैंने आपको अभी बता दिया था कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो है जो बहुत पॉपुलर फॉर्म्स है, ये स्पेशली आपको नजर आएंगे यहाँ पर। ये फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, और फिक्सेशन जो होते हैं ये ज्यादातर जो होते हैं बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं, राइट? और ये इसकी एग्जांपल दी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और आई थिंक यू विल रिसीव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। द प्लम्बर फाउंड ए प्रॉब्लम इन और, यस, अब यहाँ पर देखें फिल इन द ब्लैंक विद द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी यूज एंडिंग इन er सफिक्सेस। अच्छा, अब er का इस्तेमाल करना है, ठीक है? यूज ऑफ er है। यूज ऑफ er, कंप्यूटर्स, प्लम्बर, ठीक है? उसके साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड्स आ जाएंगे। प्लीज कुड यू take the, yes, तो डिफरेंट वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं इस एक्टिविटी से। एक्टिविटी 3 भी आपके लिए है यहाँ मौजूद, आप इसको प्रैक्टिस करें बाय द एडिशन ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, यस, आई लुक फॉर टू गोइंग टू द अम्यूजमेंट पार्क। अब इसमें से आपने क्या करना है कि इसमें आपने बेसिकली इसमें से जो है कुछ ना कुछ इंक्लूड करना है। नोटिस कर लें कि फॉर अगर यूज हुआ हुआ है, ठीक है ना, उसमें आपने किस तरीके से कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना है, या कि बुक में एक्सरसाइज कुछ तो करें अच्छे से। कैटेगरीज है फिक्सेशन की, मैंने आपको पहले बता दिया है कि आइडिया होता है प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ इन्फ्लेक्शंस है, और वो 9 है। ये 9 इन्फ्लेक्शंस जो है ना उनका यहाँ नंबर दिया गया है, और मैंने आपको पहले बताया जैसे एस है, ई एस टी है, ई डी है, ठीक है?
ING है, EN है, S है, ये बहुत पॉपुलर है। समटाइम पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डेरिवेशन और इन्फ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस, इस पे नोट लिखें। तो डेरिवेशनल का भी आपको पता होना चाहिए और जो स्पेशली इन्फ्लेक्शन फिक्सेस का भी पता होना चाहिए। ये जो आपके सामने मैंने अभी भी हाईलाइट किया है, ये आपका इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस है, जो कि ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं और स्पेशली डिफरेंट ग्रामेटिकल चेंजेस जो होती हैं उसकी वजह से ये आप कहते हैं कि ये सब इन्फ्लेक्शन है। जो जब आप कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी का या डेरिवेशन का, तो उसमें से ओपन क्लास है, क्लोज क्लास है, रूट्स है, अफिक्सेस है, ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी होती है वर्ड्स की। ठीक है। अब ये वर्ड फॉर्मेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेशन है, कंपाउंडिंग है, और इसके साथ साथ रिडुप्लीकेशन और सप्लेशन है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आप लोगों ने, यू नीड टू मूव बैक, और आप लोग काइंडली जो प्रीवियस पार्ट है उसमें से भी इसकी कंसल्टेशन कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर डिफरेंट टाइप्स करने के बाद लिंग्विस्टिक पैराडाइम की बात करते हैं कि बेसिकली अ सेट ऑफ एसोसिएटेड वर्ड फॉर्म्स लिंक्ड विद अ गिवन लेक्सीम। लेक्सीम मैंने आपको बताया कि जिसमें ग्रामेटिकली इन्फ्लेक्शन होते हैं, वो लेक्सीम्स होती हैं। ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो हम लोग आगे चलें तो आप देखें कि पर्सन, नंबर, जेंडर, केस जो है, इसी से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पैराडाइम्स है। इन्हें क्या कहते हैं? किसी भी वर्ड की जो फॉर्मेशन होती है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट इन्फ्लेक्शन होती हैं कि डिफरेंट वर्ड फॉर्म्स होती हैं ऑन द बेस ऑफ शेयर्ड इन्फ्लेक्शन क्लासिफिकेशन। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, ये आपके सामने जो है, या 4 टाइप्स हैं जो कि मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि पर्सन, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो पता है, सिंगुलर प्लूरल का भी पता है, मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन फेमिनिन का भी पता है। देन आप नॉमिनेटिव्स और ऑब्लिक्स और जेनेटिव्स है, उसका भी आपको पता है। ठीक है। सो व्हेन वी गो अहेड, हम आगे चलते हैं और मॉर्फोसिंटैक्स की बात करते हैं। फिर इसका कॉम्बिनेशन जो है, बेसिकली ग्रुपिंग वर्ड फॉर्म्स इनटू अ पैराडाइम by inflection categories are not selected randomly. The categorization is based on syntactic rules. Syntactic rules होते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाना है, यानी उन वर्ड से सेंटेंस क्या बनाना है, वो कौन से ग्रामेटिकल रूल्स हैं जिनको आपने अप्लाई करना है, तो आप इनको बेसिकली कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि जितने भी इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स हैं ना, जैसे कि सिंगुलर है, प्लूरल है, पर्सन कौन सा यूज करना है, उसमें आपने जो है प्रोनाउन का केस कौन सा यूज करना है, सारे बहुत सिग्निफिकेंट, स्पेशली आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे इन्फ्लेक्टेड वर्ड फॉर्म्स हैं, फोर लेक्सीम्स आर अरेंज्ड इनटू पैराडाइम्स categorized by the demand for of syntactic rules, whereas word formation does not correspond with syntactic rules, right? तो यहाँ पे syntactic rules and formation करने हैं। Morphosyntax stands for the relationship between syntax and morphology and relates with inflection and paradigms। बहुत इंपॉर्टेंट है कि morphosyntax कहते हैं किसको है, इस पे अक्सर शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जो सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी का आपस में जो एक कॉम्बिनेशन है, रिलेशनशिप एंड रिलेट्स विद इन्फ्लेक्शन से स्पेशली जो डील करते हैं, नॉट जस्ट विद द वर्ड फॉर्मेशन आर कंपाउंडिंग, यानी कि इसमें वर्ड फॉर्मेशन और नए नए वर्ड्स कॉइन करना नहीं, बल्कि इसमें जो है आप ग्रामेटिकल चेंजेस जो आती हैं उन्हें आप कहते हैं कि ये मॉर्फोसिंटैक्स है। ठीक है। अरे स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड फॉर्मेशन का एक ना, यहाँ पर बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी है। आई वुड लाइक एवरीवन कि आप इसको समझे। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ब्लेंडिंग का है, ये बहुत पॉपुलर है, इसी तरह एक्रोनिम्स का भी है। ठीक है। दिस इज अनदर वेरी पॉपुलर, कि बोरोइंग का कॉन्सेप्ट को किस तरह बोरो किया जाता है, ये भी बहुत पॉपुलर है। और यहाँ पर आप नोट करें कि बहुत सारी एग्जाम्पल्स इस फिगर में दी गई हैं जिससे आप नए नए वर्ड्स जो है बनाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर कंपाउंडिंग के लिए एग्जाम्पल दी गई क्लासरूम की। एक्रोनिम्स जो होते हैं, जैसे कि नैब है वर्ड, एक्रोनिम्स इनिशियल वर्ड्स आपने लिए ना, NAB, तो ये बेसिकली आपका एक्रोनिम है। लेकिन अगर आप जैसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल BBC, तो वो इनिशियलिज्म है, उसे क्या कहते हैं, इनिशियलिज्म, क्योंकि आपने सिर्फ इंडिविजुअल जो वर्ड्स हैं उनको नहीं, एक्रोनिम्स जो होते हैं जैसे कि आपने यहाँ पर राइट किया। बैक फॉर्मेशन की बात करें तो राइट फ्रॉम राइटर, राइट फ्रॉम राइटर। ठीक है। और जैसे कि आपने राइटर से वर्ड राइट बनाया, तो बैक फॉर्मेशन यानी वापस उसको उस वर्ड पे ले आना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड एडिटर है, तो आप उसका उसमें से एक वर्ड निकालते हैं एडिट, इसका मतलब है कि आपने बैक फॉर्मेशन की है, कि आपने उसमें से जो एक्सट्रैक्ट किया, जो उसके बेसिक लाइन पे आपसे वर्ड्स को ले आए। फिर एब्रिविएशंस में आप कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर के बजाय आप फ्रिज कह दें,
और एपोनिम्स जो है फॉर एग्जांपल आप अर्ल ऑफ सैंडविचेस है, सैंडविच फ्रॉम अर्ल ऑफ सैंडविच, यानी अर्ल ऑफ सैंडविच कहने की बजाय आप खाली सैंडविच कह रहे हैं। देन आपने देखिए ब्लेंडिंग होता है कि आप फॉर एग्जांपल दो तीन वर्ड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से एक नया वर्ड बनाते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी स्मोक। देखिए स्मोक और फॉग जो कॉम्बिनेशन एक वर्ड बनाता है जिसे आप कहते हैं, जिसे आप ब्लेंडिंग कहते हैं। और अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच है उसे आप ब्रंच कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड से दिस इज बोथ बट यू मे से की एक्टिविटीज है। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आप लोग उसको अच्छे से लाइक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटीज को भी आप यूटिलाइज करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ये अपनी काफी हेल्प करें। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपसे ऑलरेडी जो इंट्रोड्यूस करवाया था ये वाला टेबल था, जिसमें आप देखें कि आप एक वर्ड है उससे किस तरह एक डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके से शेप बना सकते हैं। पहले वर्ड लिखें और उसके दो पार्ट्स डिवाइड कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर जो एक लाइन आप लेके जाएं, एक पे लिखें जैसे मॉफ और ओलॉजी है ना, तो ओलॉजी ये फिक्सेशन है, इसमें मॉफ नाउन है, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया नाउन। ठीक, अब इधर से अगर देखें एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, बहुत ही एक लॉन्ग वर्ड है और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कितना लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स ट्री बना है इसका, कि एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है मॉर्फीम्स है। और आप देखें डिवाइड कैसे हुआ, कि आपने मीनिंग वाइज डिवाइड करना है। जब मॉर्फोलॉजिकल ट्री बनाते हैं तो वो मीनिंग वाइज डिवीजन होती है। ठीक है, साउंड वाइज या सेलेबल वाइज नहीं होती, कि जितने पार्ट्स में डिवाइड किया वैसे नहीं, बल्कि जितना इंडिविजुअल पार्ट मीनिंग दे रहा है आप उस वाइज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस बात को आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि जब आपने कोई मॉर्फोलॉजिकल ट्री को जो है वो आपने फर्दर डिस्कस करना है, ब्रेक करना है, तो वो बेसिकली आपने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे करना है, यानी मीनिंग वाइज बेसिस पे आपको जो करना है। एंटी इसमें देखिए अफिक्स है, दिस भी अफिक्स है, एस्टेब्लिश जो है वो बेसिकली वर्ब है। ठीक है, और मेंट जो है वो भी अफिक्स है, और एरियन भी अफिक्स है, और इसका इज्म भी, इतने सारे अफिक्सेस हैं, दे ऑल आर अफिक्सेस। और फिक्सेशन में आप देखें जो एस्टेब्लिश से पहले है वो प्री फिक्स है, जो एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो है वो आपके कह सकते हैं कि दूसरे लाइक आप कह सकते हैं कि मॉर्फीम्स है। ठीक है, स्टूडेंट समरी को क्विकली आप फिक्स कर लें माइंड में, ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, आपको समझ भी अच्छे से आएगी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड, thus forming a core part of the linguistic study। और morphemes की अक्सर definition आ जाती है, it's the smallest meaningful unit bearing units of the language। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी जो की कंपोनेंट्स है, आई वुड लाइक एवरीवन कि आप काइंडली इसको पॉज करें और इसको जरूर आप इसको रिवाइज करें। इसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं दे आर रियली इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर क्लोजिंग, इसको क्लोज करने से पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को जरूर आपके समझना है कि व्हाट इज अ वर्ड, और उसके साथ ही साथ हाउ डज इट रिलेट टू द सेंटेंस, राइट, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। देन आपने जो इसके प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको रूट वर्ड्स का भी पता होना चाहिए कि रूट के अंदर, रूट में और स्टेम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई थिंक सो फार वी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज रिलेटेड यूनिट्स एंड सजेस्टेड रीडिंग्स में हम पढ़ चुके। सो लेट्स गो अहेड, और हम जो है आप नेक्स्ट वाले यूनिट पे जाने से पहले आई वुड लाइक यू टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और उसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इनका। सो लेट्स रिवाइज द होल कंटेंट। Morphology. You may remember that morphology is one of the subsystems of language. So here's a chart of the subsystems. Perhaps you've noticed that my chart looks a little bit different to the previous series on grammar, and this is because I have decided to use a model that includes pragmatics here. I'm very keen to branch off into pragmatics another time, but right now I'm here to talk all about morphology. So here we go. Morphology. Morphology is the study of how a word is formed, how it's put together. By breaking words down into their meaningful parts, we can see how they piece together to make greater meaning. So the smallest meaningful part of a word is called
The morpheme. There it is there, the smallest meaningful part of a word. And this is not to be confused with a syllable. So I've got here morpheme equals syllable, question mark, and I can guarantee that in fact a morpheme does not equal a syllable. Okay, a syllable, I've said it very small right down the bottom here because it's not really essential to what we're learning today, but just for extra information, a syllable is a single beat of sound that usually comprises of a vowel nucleus. It's usually talked about in music. A syllable is just one beat of sound, okay? And of course language is in a way a bit of music as well, so of course it's going to come up in language too. And it's not to be confused with a morpheme. A morpheme can be more than one beat of sound as long as it's the smallest meaningful part of a word. So I think that's what we want to really get out of understanding today, just what we fully understand what a morpheme is and how it's significantly different to a syllable, which is where most of us get confused. Right, so let's have a look at 4 words that I've got here. And these words are pumpkin, vowed, sunglasses, and unmask. And underneath each word I've written S for syllable and M for morpheme. So I'm going to pull out my red pen here and we're going to figure out how many syllables and how many morphemes are in each word. Now it might be just a little point of note here that sometimes, because history goes a long way back and we don't always know the original meanings of words, sometimes we're not fully aware of how many morphemes are in a word unless we really do scrape into that etymology and sort of uncover it. So the way we figure out morphemes now, if we don't know, is we do the smallest meaningful part of the word that we currently know or understand, but we might actually be wrong. Sometimes we're wrong, but usually we can understand by affixes, we can sort of figure it out. So let's take the first word pumpkin, for example. Now we can figure out that the word pumpkin has 2 syllables because we can clap it, pumpkin. There's our syllables, 2. So I'm going to write that there. But what about morphemes? Does pump and kin, well, they both have meanings, but are they the smallest meaning of the word pumpkin? Well, in this case, I know that the word pumpkin comes from the French pompone, or however it's spoken. I'm not a French speaker, but I know that because of my etymological understanding of the word, not because I particularly know French. So this gives me a little bit of insight into its structure. But even so, I know that it's only one morpheme. Pumpkin is just a meaning in and of itself. It doesn't get broken down any smaller. However, even if I weren't to know that, I would ask the question, kin, yes, that's a word. It kind of means my brethren or someone that I'm related to. And pump, well, obviously, you know, it means to put air into something or related to air. I still don't think that that's got anything to do with pumpkin. So perhaps this word pumpkin comes from a different source than these 2 particular words put together. So morphologically, you can see it raises questions, but it doesn't have to be broken down into the smallest, it has to be broken down into the smallest meaningful part of the word in relation to what it is. So in this situation, this is only one morpheme. Look, I hope that wasn't too gibbery, but let's have a look at some other examples to help sort it out. So our second example here is vowed. Okay, so if we think of the syllable and what the syllable is, we can just clap it. So let's do that. Vowed. Well, that's clearly just one syllable. Okay, we don't say vowed, we say vowed. So it's one syllable. However, we can break this down into different meaningful parts of the word. The first part of it is the main sort of morpheme here. We've got vowel, okay, and that's where our meaning comes from. And then we have this ed here on the end, and this ed tells us meaningfully that it's in the past tense. So it gives us some functional understanding of the word.
So in this case, even though the word is only one syllable, it actually has two morphemes. So the opposite to pumpkin above. All right, let's have a look at sunglasses. We'll start off with the syllables. Let's do it. Sunglasses. Okay, yep. That's 3 syllables. We can clap 3 different sounds from that. So let's write 3 syllables. Now let's think about how it's put together. Well, sun and glass is a compound noun. Sunglass is the compound noun from sun, the meaning of the sun, and well, glasses or glasses for where the word comes from, of course, the thing that we look out of to help us with our sight. Okay, so that's clearly a compound word. So sun and glass, and of course es gives us a sense that it's plural. All right, so there we have sunglasses, and in this situation we have the compound of 2 lexical sort of words there, sun plus glass, and then we have the es on the end, which is our functional information that it's plural. All right, so let's make that 3 morphemes. And finally, we have the word unmask. Okay, so let's first of all get the syllables. So I'll just put my pen down so we can do our clap. Unmask. Well, that's 2 syllables. Very easy there, so let's put 2. Okay, and what about the morphemes? Well, we have the main part of the word here, which is mask. That's the stem of the word, the main part. And on the front this time, not on the back, we have a prefix, something that gives us, in this situation, the opposite information. So instead of to mask someone, we're unmasking them, we're uncovering them. So it gives us the opposite meaning. So therefore, there are 2 meaningful morphemes in this word. Okay, so that's essentially the way morphemes work. And morphology is really how these morphemes come together, what these morphemes mean, and how they impact on lots of things when it comes to understanding our language. Okay? By understanding this, we can actually contribute to our own mastery of spelling, which is a useful thing. We can also control how we put bigger words together and be able to spell those. So if we're teaching spelling, breaking them down into their morphemes is actually a useful way of approaching that. So morphology really is an important part of language and how it comes together. Our next video is going to start off by looking at the difference between free morphemes and bound morphemes. And that's where we'll start off our exploration of morphemes and how they work. So until then, it's great to be back, and thanks for watching The Language Code. Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter where you are. With Grammarly on your computer and phone, you always have an expert writing